عمران نیازی پاکستان کو کمزور کرنے کے در پہ ہے۔ عالمی سطح کے معروف جریدے اکانومسٹ نے ہمارے موقف کی تائید کر دی۔ جریدے کی 2 خبروں نے عمران نیازی سے متعلق ہماری باتوں کی تصدیق کی۔ عمران نیازی نے IMF سے معاہدے کی دھجیاں بکھیری اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس تباہ کن عمل کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متاثرین سیلاب کی امدادی اشیاء پر ٹیکس استثنا کی تفصیل جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کابینہ نے 30 اگست کو ٹیکس استثنا کی منظوری دی تھی۔ ضابطے کے تحت فلاحی اور مخیر حضرات کو NDMA کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کل پاکستان آئیں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر امداد کی اپیل کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزارت دفاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سمیر بن عبدالعزیز الطبیب کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ شہید کیپٹن عبدالولی وزیر کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش۔ کیڈٹ کالج وانا کے مرکزی آڈیٹوریم کو عبدالولی وزیر شہید کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ ISPR یوم بحریہ ہیروز کو خراج عقیدت و شہداء کی قربانی اور جذبے کو سراہنے کا دن۔ ہمارے ہیروز نے 1965 کی جنگ میں حوصلے، ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کی تاریخ میں سنہرے باب کے طور پر رقم ہے۔ یہ سرفروشوں کی لازوال قربانی اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیاسی کا پیغام۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، ٹھٹھا، سجاول اور دادو کے کئی دیہات زیر آب۔ منچر جھیل میں کٹ لگانے کے باوجود پانی کی سطح میں اضافہ۔ سانگڑ، ٹنڈو آدم اور نواب شاہ سمیت مختلف علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم۔ کھانے پینے سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کے تازہ اعداد و شمار جاری۔ اب تک 1355 افراد جاں بحق، 12,722 زخمی ہوئے، 17,12,514 سے زائد مکانات کا نقصان، 7,53,187 مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا آج سے ضمنی انتخابات کی مہم کا آغاز۔ آج پنجاب اسمبلی کے حلقہ 241 چشتیاں میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ اہم مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ یو ٹرن کا چیمپئن عمران نیازی اپنی سیاسی پستی کے عروج پر ہے۔ صبح ایک بیان، شام کو اسی کی تردید، رات کو ایک تو صبح کو اس کی معافی۔ فتنہ خان پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ ایسے فتنے کو قوم مسترد کر چکی۔ پشاور کے بعد اب چشتیاں سے بھی رسوا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ۔ آذربائیجان میں بین الاقوامی اسلحے کی دفاعی نمائش۔ باکو میں جاری نمائش میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن، پاکستان آرڈیننس فیکٹری سمیت 4 بڑی کمپنیاں شریک۔ آذربائیجان کے صدر کا پاکستانی سٹالز کا دورہ، دفاعی ساز و سامان میں اظہار دلچسپی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواندگی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دن کی مناسبت سے ملک بھر میں سیمینار اور مذاکرے ہوں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 174 نئے مریض رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 1.22 رہی۔ وائرس سے متاثرہ 119 افراد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ روز 14,208 ٹیسٹ کیے گئے۔ قومی ادارہ صحت۔ امریکہ کی پاکستان کو $45 کروڑ کے معاہدے کی منظوری۔ رقم F-16 طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے آلات اور سروسز کی مد میں دی جائے گی۔ معاہدے سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ امریکی وزارت دفاع۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قدر میں $4 فی بیرل سے زائد کی کمی. امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $82.68 فی بیرل ہو گئی. یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ خام تیل کی کم ترین قیمت ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر کساد بازاری کا خوف ہے. البانیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دی. ایرانی سفارت خانے کے عملے کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم. یہ فیصلہ جولائی میں سائبر حملے کی تحقیقات کے بعد اٹھایا گیا ہے. البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما کا ویڈیو بیان. ویتنام کی بار میں آگ لگنے سے 32 افراد ہلاک، 11 زخمی. یہ بار ہو چی منہ شہر کے قریب ایک رہائشی علاقے میں موجود عمارت کی دوسری منزل پر واقع تھا. آگ لگنے کے بعد عمارت میں دھواں بھر گیا. ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے کے باعث ہلاکتیں زیادہ ہوئیں. حکام بھارتی ریاست بہار میں دریا کا پانی خشک ہونے سے چھپی مسجد ابھر آئی. بہار کے ضلع نواڈا میں واقع یہ مسجد 30 برس قبل ڈیم بننے کی وجہ سے زیر آب آ گئی تھی. نوری مسجد فن تعمیر کے اعتبار سے 600 سال قدیم لگتی ہے، جو 30 سال زیر آب رہنے کے باوجود جوں کی توں ہے. He's not got the distance. Could be out. Goal. It's got him. Way to go. ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ، پاکستان کی افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست. نسیم شاہ کے آخری اوور میں 2 چھکوں نے میچ کا پانسا ہی پلٹ دیا. گرین شرٹس نے 130 رنز کا ہدف آخری اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. ایشیا کپ کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. دفاعی چیمپئن بھارت اور افغانستان ایشیا کپ سے باہر. فائنل اتوار کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوگا. بھارت اور افغانستان کی ٹیمیں آج کے میچ میں صرف پریکٹس ہی کر پائیں گی. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ شام 7 بجے کھیلا جائے گا. میچ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. پاکستان اور افغانستان کا میچ سنسنی خیز انداز میں ختم. تلخ یادیں چھوڑ گیا. دل برداشتہ افغان شائقین آپے سے باہر. پاکستانی شائقین پر جملے کسنے کے ساتھ حملہ آور بھی ہوئے. اسٹیڈیم کی کرسیاں اکھاڑ کر پاکستانی ٹیم کے سپورٹرز کو مارنا شروع کر دی. شارجہ حکام کا اسٹیڈیم میں ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. اسٹیڈیم اور شائقین کو نقصان پہنچانے والوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. نسیم شاہ کے چھکوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجنڈری بیٹسمین جاوید میانداد کی یاد تازہ کر دی. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی روی شاستری سے گفتگو. جاوید میانداد کے چھکوں کی بات کر کے شاستری کے پرانے زخم تازہ کر دیے. میانداد نے 1986 میں شارجہ ہی میں بھارت کے خلاف تاریخی چھکا مار کر پاکستان کو فتح دلائی تھی. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلی وہ میں جواب نہیں دے سکا. اور انہوں نے بات کی کہ جی امداد کہاں جا رہی ہے. امداد 100% جی مستحقین میں جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اور جو لوگ بے گھر ہیں ان کو کوکڈ فوڈ، کیونکہ اگر آپ کسی کو راشن دو، میرے حساب سے جو لوگ پانی میں موجود ہیں ان کے لیے راشن وغیرہ کی سپلائی اور اس وقت راشن کا بنانا اور اس وقت گیلی لکڑیاں اور یہ بہت بڑا عذاب تھا. اسی لیے گورنمنٹ نے کہا کہ جب بارشیں بھی پڑ رہی ہیں اور سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کوکڈ فوڈ دیا جائے. تو کوکڈ فوڈ جو ہے وہ گورنمنٹ وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکا دکا کوئی خدا نہ خاصا کوئی رہ گیا تو رہ گیا، لیکن مکمل طور پر جتنے بھی مستحقین ہیں ان کو امداد دی جا رہی ہے. آپ نے بات کی منچر جھیل کی، وہ بات میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا تھا، آج جب ہم ابھی بات کریں ابھی بھی دریا سندھ کا لیول اتنا اونچا ہے کہ منچر کا پانی وہاں پہ کٹ نہیں دیا جا سکتا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب 8-9 گھنٹے اور انشاءاللہ گزر جائیں گے، جو ابھی اریگیشن کے ایکسپرٹس نے رپورٹ دی ہے، 8-9 گھنٹے کے بعد جب دریا سندھ کا لیول مزید کوئی 8 یا 9 انچ نیچے ریڈیوس ہوگا تو پھر وہاں کٹ لگا کے منچر کے پانی کو دریا سندھ میں بھیجا جائے گا. ایک بات وہ روزانہ گزار کرتے ہیں. اس کے مطابق
15 पोर्टेबल वाशरूम में आप कहते हैं कि 1.25 करोड़ लोग मुतासर हुए। 15 पोर्टेबल वाशरूम क्या उनके लिए काबिल कबूल है? इसी रिपोर्ट के मुताबिक आपने कहा कि पका हुआ खाना दे रहे, इसके मुताबिक पिछले 24 दिनों में 41 जगह पकी हुई पीडीएम में दी है, तो 1.25 करोड़ लोग 41 जगहों में पेट भर लेंगे। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये कि आप दे रहे हैं पैसे लाइव स्टाफ वालों को, उन्होंने लंबी स्कीम में 2 अरब रुपए से ज्यादा पैसे लिए, कुछ नहीं किया। अभी उनके पास 75 करोड़ रुपए उनका सालाना बजट है अध्यात्म का जो जानवरों की, लेकिन उन्होंने फिर आपसे 2 अरब रुपए मांग लिए, बदले ने 1 अरब रुपए अध्यात्म की मदद में भी दे दिए, चारे के लिए भी दे दिए। लाइव स्टाफ हमारा वैसे ही मर रहा है, उन्होंने उनके लिए क्या किया? आप उनको दोबारा पैसे दे रहे हैं, और ये जो आप बता रहे हैं कि आपने इतना राशन भी दिया, और ये तो पीटीएम की रिपोर्ट है कि हमने 41 जगह 24 घंटे में बांटी है, वो 1.25 करोड़ लोग कैसे खाएंगे? और जो 15 पोर्टेबल वाशरूम में क्या ये काफी दीजिए, आपने रिपोर्ट पढ़ी पीडीएम की, ठीक है ना? यहाँ सिर्फ पीडीएम में काम नहीं कर रही है, वज़ीर आला साहब ने की हिदायत पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हर डिप्टी कमिश्नर को कैश जो पैसे भेजे अकाउंट्स में, उनके हिसाब से तमाम डीसीज जो हैं वो वहाँ खुद खाना बना रहे हैं। सिर्फ पीडीएम में नहीं कि पीडीएम ने सिर्फ जो जगह बना रही है वो एक एक जगह पहुँच रहे हैं, वो पहुँच भी नहीं सकते ना। पीडीएम में कितना मैकेनिज्म है, जितने डीसीज को पैसे दिए गए हैं वो फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स के थ्रू, मुख्तियार कार्स के थ्रू वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि हर जगह पे कुक्ड फूड पहुँच रहा है। जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं, मैं अभी तक मैंने कभी कोई ऐसा रिलीफ कैंप नहीं देखा जो कि गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड रिलीफ कैंप ऐसा हो जहाँ पे खाना नहीं मिला। पूरे सिंध में मुझे कोई एक भी कंप्लेंट नहीं मिली कि कोई एक ऐसा रिलीफ कैंप गवर्नमेंट का हो डिक्लेयर्ड किया हुआ जिसमें नहीं मिला हो। हम मतलब तो काफ़ी जगहों पे ऐसा कर रहे हैं कि जी जहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है, फिर जो पे कुछ मुखैर हजरात या जो एनजीओज़ हैं उन्होंने अपने रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी फूड सप्लाई हो रहा है, और बाकी मुखैर हजरात जो बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी तरफ से भी मुख्तलिफ जगहों पर कुक्ड फूड दे रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरी बात आपने की टॉयलेट्स की, तो टॉयलेट्स भी मैं आपको बता दूँ जी कि जिस तरह काफ़ी स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे टॉयलेट का इंतज़ाम है। जहाँ पे हम रिलीफ कैंप्स बना रहे हैं वहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स भी शो कर सकता हूँ कि रिलीफ कैंप्स के अंदर भी हमने टॉयलेट के जो हैं वो सिस्टम दिए हुए हैं। तो पीडीएम में एक सूबाई सेंट्रल इदारा है जिसने बताया कि उन्होंने ये चीज़ सप्लाई की हैं, लेकिन उसके बाद एक और चेन ऑफ कमांड नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ कर हर जगह पे वो फैसिलिटीज़ जहाँ पे पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद फराहम की जा रही है। रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जा रही हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जरीदे की 2 खबरों ने इमरान न्याज़ी से मुतालिक हमारी बातों की तस्दीक की जो हम पहले दिन से कहते आए हैं। हालिया शुमारे में जरीदे ने लिखा है कि कैसे इमरान न्याज़ी ने IMF से किए गए मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई और सैलाब को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान न्याज़ी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुतासरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना देने के काबीना के फैसले की तफसील जारी कर दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना ने 30 अगस्त 2022 को टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी दी थी, जिस पर फौरी अमल हुआ। मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए मच्छरदानियों, कश्तियों समेत तमाम अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। वज़ारत ख़जाना और FBR ने अमल दरामद का SRO भी जारी कर दिया था। ज़ाब्ते के तहत फलाही और मुखय्यर काम करने वालों को NDMA का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दौरे पाकिस्तान में आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर है। इस कुदरती आफत में बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से यकजहती का इजहार करना होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां अहम मसला हैं। कहीं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और कहीं खुश्क साली की वजह से मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली को आम मसला समझकर आम अंदाज से हल करने की सोच महज खुदकुशी होगी।
आर्मी चीफ से सऊदी वजारत दिफा के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO समीर बिन अब्दुल अजीज ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी की सूरत हाल, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बात हुई। आर्मी चीफ ने बाहमी ताल्लुकात की मजबूती के लिए समीर बिन अब्दुल अजीज की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के मुनफरिद मकाम को भी तस्लीम करते हैं। सऊदी मेहमान ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ करते हुए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर भी इजहार अफसोस किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर ने वाना में शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद और उनके अहल खाना को मादर वतन के लिए कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश किया। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी ऑडिटोरियम को भी शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर के नाम से मंसूब कर दिया गया। कैप्टन अब्दुल वली वजीर एक ऑपरेशन की क़यादत करते हुए शहीद हुए। इस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए थे। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ये दिन बहरी हीरोज़ की कुर्बानियों और जज्बे को सराहने का दिन है। हमारे हीरोज़ ने 1965 की जंग के दौरान हौसले, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। ये दिन हमारे गाजियों और शुहदा के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है जो बहादुरी से लड़े। 7 और 8 सितंबर 1965 के दरमियानी शब पाकिस्तान नेवी के 7 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल बीड़े ने ऑपरेशन सोमनाथ में हिंदुस्तानी बंदरगाह दवारा का बमबारी की। इस बर्क रफ्तार और दुरुस्त कार्रवाई ने न सिर्फ अहम साहली तनसीबात को तबाह कर दिया बल्कि हिंदुस्तानी गुरूर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। यौम बहरिया पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी ने अपने पैगाम में कहा है कि 8 सितंबर का दिन पाकिस्तान नेवी की तारीख में सुनहरे बाप के तौर पर रकम है जो पाक बहरिया के सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी खत्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है और पाक बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा भरपूर तरीके से अंजाम दिया। अपनी हरबी सलाहियतों में इजाफा करते हुए पाकिस्तान नेवी की ताकत में वक्त के साथ साथ मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान बहरिया बहरे हिंद में एक ताकतवर फौज है जिसके बहरी बेड़े में नई और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुख्तलिफ बहरी और फिजाई जहाजों की शमूलियत का सिलसिला तेजी से जारी है। पाक बहरिया के लिए चीन के हेडोंग ज़ोंगवा शिप यार्ड में तैयार किए गए 4 फ्रेगेट जहाजों में से 2 जहाज PNS तुगरल और PNS तैमूर पाक बहरिया में कमीशन हो चुके हैं, जबकि मजीद 2 जहाज तकमील के मराहिल में हैं। ये जहाज मुख्तलिफ किस्म के जंगी हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चीन के ताउन से तैयार की जा रही 8 हंगूर क्लास आबदोजों में से 4 चीन में जबकि 4 कराची शिप यार्ड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लेस होंगी। तुर्की के ताउन से बनाए जा रहे 4 मुलजिम क्लास जहाजों में से 2 जहाज तुर्की में जबकि 2 कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किए जा रहे हैं। मुलजिम क्लास कार्वेट्स जदीद तरीन बहरी जहाज हैं जो सतह आब, ज़ेरे आब और फिजा में मार करने वाले हथियारों, सेंसर्स और जदीद हरबी सलाहियतों से लेस हैं। रोमानिया में तैयार करदा जदीद ऑफशोर पेट्रोल जहाजों में से PNS यरमूक और PNS तबूक की बहरी बेड़े में शमूलियत पाक बहरिया के लिए अहम संग मील है। ये जहाज बैक वक्त मुख्तलिफ किस्म के बहरी ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर और बगैर पायलट फिजाई जहाज ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा मकामी सतह पर जहाजों की तैयारी की जा रही है जिसका मकसद मुल्की इंडस्ट्री को फरोग देना और जहाज साजी के शोबे में खुद मुख्तारी का हसूल है। बहरी बेड़े में जदीद जहाजों की शमूलियत पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की ताकत को बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा करेगी। ये जहाज खित्ते में पायदार बहरी तवाज़न कायम करने और बहरे हिंद में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अज़रबाईजान में बैनुल-अक़वामी असलहे की दिफाई नुमाइश का आगाज़ हो गया है जिसमें दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की बड़ी असलहा साज कंपनियां शिरकत कर रही हैं। दारुल हुकूमत बाकू में होने वाली 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी असलहे की दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत 4 बड़ी कंपनियां शरीक हैं जो दुनिया भर से आने वाले मुल्कों के मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। अज़रबाईजान के सदर ने भी पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया और पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 125 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 41,894 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी ने पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। आलमी मॉनेटरी फंड की जानिब से इजहार एतमाद के दुनिया भर से कैसे फवाइद समेटे जा सकते हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं।
IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्की मईशत में नई जान पड़ गई है और पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मुल्कों और डोनर इदारों की जानिब से इमदाद और कर्ज के दरवाजे खुल गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोग्राम एक ऐसा सर्टिफिकेट समझा जाता है जो कर्ज और इमदाद लेने में मुआविन साबित हो सकता है। आलमी मालियाती फंड की जानिब से एतमाद का इजहार इस बात की गारंटी तस्वर किया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत कर्ज लौटाने की पूरी सलाहियत रखती है। IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद अब पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, पेरिस क्लब और दीगर आलमी मालियाती इदारों के दरवाजे खुल गए हैं। पाकिस्तान अब आलमी मार्केट में बॉन्ड फिरोख्त करके भी पैसा जनरेट करने की पोजीशन में आ गया है। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से मुल्क की मईशत को मिलने वाले ग्रीन सिग्नल के बाद पाकिस्तान में रखी गई बैरूनी रकूम की वापसी के खदशात भी दूर हो गए। हुकूमत की अनथक कोशिशों और अवामी ताउन के नतीजे में पाकिस्तान खौफनाक बहरान से बच गया। IMF प्रोग्राम के हुसूल के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते डिफॉल्ट होने के खतरात न सिर्फ खत्म हो गए हैं बल्कि इक्तसादी मैदान में पाकिस्तान मुस्बत जोन में भी आ गया है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज आज से ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही हैं। मरीम नवाज ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज PP 241 चिश्तिया में जलसा आम से खिताब करेंगी। खिताब से कबल वहाँ मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यूटर्न का चैंपियन इमरान न्याज़ी अपनी सियासी पस्ती के उरूज पर है। सुबह एक बयान, शाम को इसी की तरदीद, रात को एक तो गाली तो सुबह को इसकी माफ़ी। अपने ट्वीट में राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैतना खान पाकिस्तान की सलामती के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। ऐसे फतने को कौम मुस्तरद कर चुकी। पेशावर के बाद अब चिश्तियाँ से भी रुसवा हुआ। NDMA ने सैलाब से जानी और माली नुकसान के ताज़ा आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अब तक 1355 अफराद जाम हक, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 12722 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से मुतासर इलाकों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक अब तक 17,12,514 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा और 7,53,187 मवेशी भी सैलाब में बह गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 20 अरब से ज़ायद रकम मुतासरीन में तकसीम की जा रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास हुआ। इजलास को मौसम और सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत शाहराहों, रेलवे ट्रैक्स की बहाली के मनसूबे और अबूरी नुकसान के तखमीने से आगाह किया गया। फोरम को सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब के पानी से पैदा होने वाली बीमारी पर काबू पाने और पानी साफ करने के तरीक़ेकार के बारे में भी बताया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाते हुए बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए ताकि सैलाब से मुतासर लोगों की मामूल की ज़िंदगी को वापसी यकीनी बनाई जा सके। खबर है मंचर झील से, जहां पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि झील का पानी पक्के के मजीद इलाकों में दाखिल हो गया है। RBOD सीम नाला 2 मकाम से टूटने के बाद सैलाबी पानी तेजी से करीबी देहात को लपेट में ले रहा है। गुज़श्ता शब सिंध के तारीखी कस्बे टल्टी में पानी दाखिल हो गया, जबकि भान सैदाबाद शहर को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अलर्ट जारी होने के बाद भान शहर के अक्सर रिहायशी अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। जामशोर और सहन शरीफ में सैलाब नशेबी इलाकों को डुबोने के बाद इंडस हाईवे और लिंक रोड तक पहुंच गया है। मंचर झील के पानी से 9 यूनियन काउंसिल्स मुतासर हुई हैं, जिससे 700 से ज्यादा छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए। मोटरवे पुलिस ने सहबन से भान सैदाबाद तक इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से पन्नू आखिल में भी सैलाबी पानी के बायस कच्चे के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ गए। तहसील भर में 24,000 अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन को आर्जी खैमा बस्तियों और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरीन के इमदाद और सरकारी इंतजाम के हवाले से बता रहे हैं पन्नू आकिल से हमारे नुमाइंदे जुबैर उंधड़। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नू आकिल में दरिया सिंध के पंवारी बचाव बंद पर, जहाँ पर सैलाबी पानी ने कच्चे के तमाम इलाके ज़ेरे आब किए हैं। दरिया सिंध के गुड्डू और सखर बिराज के मकाम पर सैलाबी पानी का दबाव बरकरार, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि सूबाई हुकूमत और फलाई तंजीम JDC की जानिब से पंवारी और जतोई बचाव बंद पर टेंट सिटी कायम किया गया है।
जहां पर सैलाब मुतासरीन को फलाही तंजीम और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कश्तियों के ज़रिए सैलाबी पानी से बाहर निकाल कर टेंट सिटी में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर मेडिकल कैंप भी कायम की गई है। उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। फवारे पर लगी हुई है, टाइम पर लगी हुई है, वहाँ डॉक्टर मौजूद है, दवाई मौजूद है, सुबह शाम खाना मिलता है, हमें राशन पानी दिया है, सब कुछ उसने मदद की है। मवेशियों को भी बाहर निकाला जा रहा है, उनको भी लाइव स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन का अमल किया जा रहा है। सैलाबी पानी की वजह से कच्चे मकानात गिर गए हैं और पक्के मकानात मुनहदम हो गए हैं और उसके साथ हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। और मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम यकजा होकर बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर अंदाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। घोटकी में भी मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए अशियाए ज़रूरिया जमा करने के लिए कैंप्स कायम किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं बरकत अली शर। जी, हालिया बारिशों के दौरान बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के बाद सैलाब और बारिश मुतासरीन की मदद के लिए जहां पर सरकार की जानिब से इमदाद की जा रही है, मदद की जा रही है, वहां पर मुखैर हजरात फलाही इदारों की जानिब से भी भरपूर अंदाज में मदद की जा रही है। हर मकतबा फ़िक्र के अफराद जो हैं मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। खुद लोग आ रहे हैं, गाड़ियां भर के, लेडीज आ रही है, बच्चे अपने सामान, खिलौने, हर चीज दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जान साहब को 8-10 लाख दे भी चुके हैं कुछ ऐसे, और 2-3 ट्रक के भेज भी दिए और मजीद इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। बाकी इसके साथ हमारे पास ये डॉक्टर हजरात यहाँ एक वकला बिरादरी है, ये भी बढ़ चढ़ कर इस चीज में हिस्सा ले रही है। मुतासरीन की मदद के दौरान कोशिश की जा रही है कि जो अशिया खुर्दनोश वहाँ तक पहुँचाई जाए वो बेहतरीन मयार में हो, इसलिए कि सैलाब मुतासरीन और बारिश मुतासरीन इस वक्त भी कई मुश्किलात से दो चार हैं, ताकि उन्हें मुयसर होने वाली ग़िज़ाई जो ज़रूरियात पूरा करने के दौरान बेहतर अंदाज में वो उन्हें मुयसर हों, ताकि वो किसी भी अमराज से बच सकें। रकम की सूरत में जो डोनेशन मिल रही है तो उसमें हम जो है खुद जाकर वो जो मयारी चीज़ है वो अब खरीद कर वो ये राशन बना रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सरकार की जानिब से हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया घोटकी और पाक अफवाज की जानिब से भी मुतासरीन की मदद की जा रही है और उन्हें राशन फराम किया जा रहा है। फलाही इदारों, मुखैर हजरात, तमाम तर मकतबा फ़िक्र व उम्र के अफराद मुतासरीन की इमदाद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पीर महल में सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए मुख्तलिफ ताजर और फलाही तंजीमों की तरफ से शहर भर में इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जहाँ सैलाब से मुतासर होने वालों के लिए इमदाद इकट्ठी करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मद नौमान चौधरी। मुल्क भर की तरह पीर महल में भी सैलाब से मुतासर इलाके की आवाम की इमदाद और बहाली के लिए पीर महल फलाही तंजीमें और ताजे तंजीमों की जानिब से जो है इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। 4 इमदादी कैंप के ज़रिए जो है इमदाद इकट्ठी की जा रही है और यहाँ पर शहरी जो बड़ी तादाद में अतियात जमा करवा रहे हैं। शहरियों की जानिब से खाने पीने की अशिया में आटा, दाल, घी, चावल, मसाला जात, चाय की पत्ती शामिल हैं जो अतियात कर रहे हैं। मैंने अपनी पॉकेट मनी से अतिया की है लोगों के लिए। गुजारिश है कि आप भी उनके दूसरे शहरों के लोग भी इनके लिए करें। पीर महल ताजर सिविल सोसाइटी कारकुन, मुखैर हजरात और फलाही तंजीमें जो हैं वो सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और शहरी भी दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और रिलीफ फंड में काफ़ी अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो रकूम इकट्ठी कर रहे हैं। एहतियात करने वाली अशिया में पीने का साफ पानी, बिस्तर, दवाएं और नकदी रकम शामिल है। अब तक पीर महल में 15 लाख से ज़्यादा रकम और खाने पीने की जो अशिया हैं वो इकट्ठी की जा चुकी हैं, जिनको सैलाब से मुतासर इलाके में जो है वो रवाना किया जाएगा, जहाँ पीर महल के शहरियों की जानब से जो है वो सैलाब मुतासर अफराद में तकसीम की जाएगी। खैरपुर में हालिया मानसून के बारिशों से दीगर नुकसानात के साथ साथ 3 लाख एकड़ अराजी पर कपास की फसल भी शदीद मुतासर हुई है। कपास की फसल में अब सिर्फ सड़े हुए पौधे जमीन पर नजर आ रहे हैं, ताहम हुकूमत सिंध की जानिब से किसानों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिद चौहान से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? खैरपुर में हालिया गैर मामूली बरसातों के
باعث دیگر نقصان کے ساتھ ساتھ جو ہے کپاس کے فصل کو بھی جو ہے شدید نقصان پہنچا ہے۔ خیرپور ضلع میں 3 لاکھ ایکڑ اراضی پر کپاس کی فصل ہر سال اگائی جاتی ہے، جس سے تقریباً 4 ارب روپے تک کپاس کے کاشتکاروں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن رواں سال مونسون کی غیر معمولی بارشوں نے خیرپور میں بالکل تیار کپاس کی جو فصل ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ بارش کے پانی کھڑا ہونے سے کپاس کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 95% جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ نقصان تھی یار، گھر گری پیا، فصل گہنو یا جوار ہوا وہ بھی پیا اساں مالک حکومت کے عرض کو اساں مدد کرے سمجھی، اساں مال ملے، اساں صفا بک مالی بھی اساں کا شے کون بچو لائی وون سڑی آ हेतिरा पाणी बीजी आहे वणनि में सब्जियूं हे हो ॿियो वग़ैरह इलाही नुक़सान थियो आहे। حکومت سندھ کی جانب سے دیگر نقصان کے ساتھ ساتھ جو ہے کپاس کے نقصانات کا بھی جو ہے تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کپاس کے کاشتکاروں کے لیے کوئی خصوصی پیکیج جو ہے سندھ حکومت کی طرف سے فراہم کیا جائے تاکہ کپاس کے کاشتکاروں کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثر علاقوں میں عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت اور دیگر متعلقہ ادارے مؤثر حکمت عملی کے تحت وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس وقت امدادی سرگرمیوں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں سرفراز شیخ۔ سرفراز شیخ، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے امدادی کارروائیوں کی؟ اس وقت ہم موجود ہیں کوئٹہ کے نواحی علاقے اڑک میں، اور یہ ایک بہت خوبصورت مضافاتی علاقہ ہے۔ یہاں کا فروٹ بہت مشہور تھا اور جو بھی کوئٹہ آیا اس نے اڑک کی سیر کی اور آ کر یہاں کے باغات دیکھے اور یہاں فروٹ سے بہت لطف اندوز ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت باغات کس طریقے سے تباہ کاری کا شکار ہوئے، اور یہاں پر جو آس پاس آبادی تھی وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ کچے مکانات منہدم ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مواصلاتی نظام ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو اسکول تھے اور جو سرکاری عمارتیں تھیں، لوگوں کے ذاتی رہائشیں تھیں، اس پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مکی محمد شکیل سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے تحت ان کو کیا ریلیف ملا ہے یہاں پہ۔ پی ٹی وی نیوز کا بہت شکریہ کہ انوڑک میں آئے، ہم لوگ اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طوفان ہے، تو بس یہ ہم لوگ کا انوڑک علاقہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا علاقہ تھا، تو یہ بالکل تباہ ہو گیا یہاں پہ۔ ایف سی کی جانب سے بہت اچھا مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، یہاں پر راشن ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، خیمے تقسیم کیے گئے ہیں، کمبل اور دیگر اشیاء ضروریہ جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور لوگوں کو علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے، طبی سہولیات دی جا رہی ہیں اور مفت ادویات دی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم ان تمام چیزوں کے اوپر قابو پا لیں گے مل کر۔ اس میں جو ہے مستحقین کی امداد و بحالی کے لیے جو حکومت کا جو ویژن ہے، حکومت کا جو مشن ہے، وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے، حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور علاقہ مکینوں کو تمام سہولت فراہم کی جائے گی۔ بہت شکریہ سرفراز شیخ۔ اور مشیر داخلہ بلوچستان مرزا لانگو نے کراچی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد زیبی سے ملاقات کی، جس میں بلوچستان کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ دونوں ممالک کا رشتہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا متحدہ عرب امارات نے ہمارا ساتھ کیا۔ اماراتی سفیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بلوچستان میں امدادی پروگرام جاری ہے۔ حالیہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے بہہ جانے والے گنڈی عاشق سکوپل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں وزیر جعفر زکوڑی سے۔ اس وقت ہم خیبر پختونخوا اسلام آباد سی پیک روڈ، بلوچستان کو ملانے والے سی پیک روڈ گنڈی عاشق سگو پل پہ موجود ہیں۔ یہ جو برج پیچھے نظر آ رہا ہے یہ گزشتہ 12-13 دنوں سے ہر قسم ٹریفک کے لیے بند تھا۔ یہ پل پانی میں بہہ گیا تھا۔ افواج پاکستان کے طرف سے ایمرجنسی پل یہاں پہ آخری مراحل میں وفاقی حکومت اور وزیر مواصلات کی ہدایات پہ NHA کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ کل کسی بھی وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ملانے والا گنڈی عاشق پل سگو برج یہ عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائیں گے۔ اس وقت 1122 افواج پاکستان کے جوانوں کا یہاں پہ خدمات جو ہیں وہ اعلان علاقہ یہاں خراج تحسین پیش کرے۔ یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی موجود ہے، مریضوں کے لیے میڈیکل کیمپ موجود ہے، لوگوں کے لیے کھانے اور پینے کی اشیاء بھی یہاں پہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی
लोगों के लिए खाने पीने की अशिया भी फ्राहम की जा रही हैं और इस पुल को भी जल्दी खोल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर से मुलाकात हुई है, जिसमें सफीर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर और उनकी टीम को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया। उन्होंने वफ़द को बताया कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने सैलाब से नतीजे में होने वाली जानी और दीगर नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है ताकि इसकी रोशनी में पाकिस्तान की मदद की जा सके। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की, जिसमें सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की मजबूती के अलावा तालीम, तिजारत और माहौलियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए तमाम इदारों और सूबों के साथ लेकर चल रहे हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ख़तीर रकम भी मुख्तस की गई है। गवर्नर पंजाब ने बरतानिया की डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड स्कीम में पाकिस्तान की बरामदात के लिए मराद के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान फ्री डेड एग्रीमेंट जल्द शुरू हो जाएगा। बारिशों और सैलाब ने देही इलाकों के मकीनों के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं। कोहाट के इलाके रहमानाबाद के दूर दराज देहात में दरिया सिंध के किनारे सैलाबी पानी उतरने के बाद दलदल बन गए। रोजाना दर्जनों जानवर पानी पीने आते हैं और दलदल में धंस जाते हैं, जिससे इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। लोग अपनी मदद आप के तहत दलदल में फंसे जानवरों को निकालते हैं। ये सिलसिला सैलाब का पानी उतरने के बाद से जारी है। नाज़ी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म जारियत का सिलसिला जारी है। जालिम काबिज फौजियों ने जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 2 रोज में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 4 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने नौजवानों को जिला के इलाके तजवारी में मुहासरे और तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को रोजाना की बुनियाद पर मावराए अदालत कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ये मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर को अक़लियती इलाके में तब्दील करने के मोदी हुकूमत के फैसलाई मनसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त मिटाने और हिंदू तहजीब मुसरत करने के लिए इसराइली तर्ज पर नौ आबादियाती मनसूबे पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमल कर रही है। कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें, मुल्क भर में कोरोना से गुज़श्ता रोज़ कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,208 टेस्ट किए गए, जिनमें से 174 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुहलिक वायरस से अब भी 119 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की शरह 1.22% रही। नामवर समाजी रहनुमा हनीद लखानी कराची में इंतकाल कर गए। वो डेंगू बुखार के बायस हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तालीम और समाजी खिदमत के शोबे में उन्होंने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। हनीद लाखानी ने समाजी शख्सियत की हैसियत से इकरा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्वीट होम्स में लावारिस और गरीब बच्चों की परवरिश के साथ उनके तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए। वो बैतुल माल सिंध के चेयरमैन भी रहे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी उनकी वफ़ात पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की देखभाल के लिए आलात और सर्विसेज की मद में $45 करोड़ के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमरीकी वजारत दिफा के एलामिये के मुताबिक अमरीका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने मतलूबा सर्टिफिकेट्स फराहम कर दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस को इस मुमकिन फ़रोग़ के बारे में मुतला कर दिया गया है। इस मुआहदे में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन होगी। एलामी में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माजी की तरह F-16 तैयारों की देखभाल और मुआवनत को बरकरार रखने की दरख्वास्त की गई है, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 बीडे की मुआवनत की जा सके और इस हवाले से मज़ीद अवामिल भी शामिल किए जा सकें। अमरीकी साख्ता F-16 तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई जंगी सलाहियत का सबसे अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर 85 F-16 तैयारे हैं, जिनमें से 66 पुराने ब्लॉक 15 तैयारे हैं और 19 जदीद तरीन ब्लॉक 52 हैं। इस मुआहदे के तहत अमरीकी हुकूमत और लॉकहेड मार्टिन की जानिब से इंजीनियरिंग, तकनीकी और लॉजिस्टिक सर्विसेज फराहम की जाएंगी। अमरीकी वजारत दिफा ने कहा है कि अमरीका को इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। एलामी में मजीद कहा गया है कि मुमकिन फ़रोग़ पाकिस्तान के F-16 फ़ज़ाई बीड़े की देखभाल जारी रखने में मदद करेगी, जिससे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत को बरकरार रखने में मुआवनत मिलेगी।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قدر میں $4 فی بیرل سے زائد کی کمی ہوئی ہے۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $82.68 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88.74 فی بیرل ہوئی ہے۔ فروری میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ خام تیل کی کم ترین قیمت ہے، جس کی وجہ عالمی سطح پر کساد بازاری کا خوف اور چین میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے خدشات کے باعث خام تیل کی طلب میں کمی ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے 28ویں ہفتے میں روسی فوجیوں کے تمام محاذوں پر پسپائی کا سامنا ہے۔ یوکرین کی طرف سے جنوبی علاقے خرسون سے لے کر مشرقی اور شمالی محاذوں پر جوابی حملے جاری ہیں۔ شمالی یوکرین میں فوجوں نے خارکیف کے علاقے میں 2 روز پہلے جوابی حملے کا آغاز کیا تھا۔ خارکیف کے شمال مشرق میں واقع کئی دیہات پر یوکرین کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور عسکری بلاگرز نے علاقے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تصاویر شائع کی ہیں۔ روسی فوج نے یوکرین کی پیش قدمی روکنے کے لیے علاقے کے تمام پل بارود سے اڑا دیے ہیں۔ البانیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں اور ایرانی سفارتکاروں اور سفارت خانے کے عملے کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم ایریراما نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے فوری طور پر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام البانیہ نے جولائی میں سائبر حملے کی تحقیقات کے بعد اٹھایا ہے۔ خبر ہے ویتنام سے، جہاں ایک بار میں آگ لگنے سے 32 افراد جھلسنے اور دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو گئے اور 11 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ بار ہو چی منہ شہر کے قریب ایک رہائشی علاقے میں موجود عمارت کی دوسری منزل پر واقع تھا۔ مرنے والوں میں 17 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کے بعد عمارت میں دھواں بھر گیا تھا اور ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہونے کے باعث زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کینیڈا میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ چاقو سے حملہ کر کے 10 افراد کو ہلاک اور 18 کو زخمی کرنے والا مشتبہ ملزم پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 32 سالہ ملزم کو کینیڈا کے صوبے ساسکچوان سے گرفتار کیا گیا تھا، تاہم طبی پیچیدگیوں کے باعث ہلاک ہو گیا۔ اس حملے میں 2 مشتبہ ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا جو کہ آپس میں بھائی تھے۔ 2 روز قبل ایک مشتبہ حملہ آور کی لاش ملی تھی، تاہم ان کا بھائی بدستور مفروض تھا۔ بھارت کی ریاست بہار میں دریا کا پانی اترنے پر ایک مسجد ابھر آئی ہے جو 30 سال قبل ڈیم بننے کی وجہ سے زیر آب آ گئی تھی۔ بہار کے ضلع نواڈا میں خشک سالی کے باعث دریا کا پانی خشک ہو گیا اور وہاں ایک مسجد ابھر آئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے 600 سال قدیم لگتی ہے، تاہم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 120 سال پرانی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد مسجد دیکھنے پہنچ گئی۔ مسجد حیران کن طور پر 30 سال زیر آب رہنے کے باوجود جوں کی توں ہے اور عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، سبی اور دالبندین میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی کوریا میں سمندری طوفان سے مختلف حادثات میں مجموعی طور پر 10 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں سمندری طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ پانی کا ریلا قریبی رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا۔ ایک اپارٹمنٹ کی پارکنگ پانی سے بھر گئی، جہاں سے 7 لاشیں ملیں جبکہ 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ یہ افراد پانی کے ریلے میں پھنس گئے تھے۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ آج کے اس جدید دور میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ علم کے بغیر کوئی بھی انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔
जो कौमें तालीम में पीछे रह जाती हैं वो अक़वाम आलम में अपनी अज़मत व वक़ार खो देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ख़वानदगी का आलमी दिन 1967 से मनाया जाता है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर के तमाम शोबों को नुकसान पहुंचाया, वहीं तालीम का शोबा भी इससे सख्त मुतासर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना वायरस ने नई नस्ल की तालीम और सीखने के अमल को बुरी तरह मुतासर किया। ज्यादातर ममालिक में ऑनलाइन तालीम देनी शुरू कर दी गई, ताहम इसमें बेशुमार पेचीदगियां सामने आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 77 करोड़ से जायद अफराद नाख्वानदा हैं। पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी 58% है, जिसको बढ़ाने के लिए संजीदा इक़दामात की जरूरत है। यूनेस्को के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल जाने से महरूम बच्चों की तादाद 2 करोड़ से जायद है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने भी तालीमी सिलसिले को बुरी तरह से मुतासर किया है। मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत में कमी लाकर शरह ख्वानदगी में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।